Today we will see the new topic, that is access modifiers in Java. So this is the topic from the second unit. But we will see this topic in the third because we have to implement this access modifier in the packages also. So first, before that, what is the meaning of access modifier? Okay. Access modifier means what? The access modifiers are the controls that on the visibility of the classes, methods, and the variables. Okay, that is nothing that the access modifier is nothing that the restrictions on your the properties of classes. Okay, suppose I have to means suppose some of the variables are a public, so all the classes can access that the variable because this is the public property. But your the private property is not going to be accessed throughout the outside the world also. Means your the private property is nothing that you are suppose it's your the home is nothing that you are the private property, or you are the vehicle, or your what it's your the car also. Okay, so you are accessing only your the private property, so you are giving some that private your property to your the friends also. Okay, you are giving some permissions to your the friends so that they can access your the private property. Okay, but if it is a public, then everyone can access it. Like is like your
गूगल फोटोज ड्राइव है, गूगल ड्राइव सब लोग एक्सेस कर सकते हैं. यस, यस और नो? व्हाई? गूगल ड्राइव इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी और द प्राइवेट प्रॉपर्टी? कैन आई एक्सेस योर ड्राइव्स डेटा? आपको शेयर करना पड़ता है ना. Suppose you are creating one of the link or the Excel sheet on the drive and you are giving the accessibility to the others. So I will send it. So you have to give the permission to me so I can see that file or I can edit something in that the file. Got it? That is the public and the private. So this access modifiers controls the visibility of the classes as well as the methods and the variables. So we can apply this access modifier on the classes. That means public class, class ka naam. So that class is nothing that the public. So the other class can access that the class. If I make that the class as a private, so no other classes can access the class. Means we are not accessing the properties of that the classes. Class ही आपने private कर दिया, तो उसके members क्या रहेंगे? प्राइवेट रहेंगे ना. बराबर है कि नहीं? अगर मैंने क्लास को पब्लिक कर दिया, सो एनीवन कैन यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट द क्लास. सो दिस इज द क्लास, आपका एक क्लास है. सो इज दिस क्लास इज अ पब्लिक और प्राइवेट? पब्लिक है क्या? कोई अदर क्लास का बंदा यहाँ पे आके बैठ सकता है क्या, अदर ब्रांच का? सो इट इज अ योर, वी कैन से दैट इज फॉर योर सीएससी डिपार्टमेंट. दिस फॉर योर द एसवाई क्लास. एसवाई की कितने डिविजन है? 4 डिविजन. But you can sit into the D division also. Yes or no? If you have a free time, then you can sit into the another class of this SY. Yes or no? बैठ सकते हो ना, ऐसा कंपल्शन नहीं है कि यहाँ पे ही बैठना है. अगर आपके पास फ्री स्लॉट है और आपको लेक्चर अटेंड करना है किसी और सब्जेक्ट का या किसी और फैकल्टी का, then you can sit it. तो ये क्या हो गया? This is nothing that is the what? It is a public for which you are only the department of the CSE, for only the SY. But you can't sit into the TY class. TY के क्लास में जाके बैठ सकते हो आप? नहीं. यस, या सिविल का बंदा यहाँ पे आके बैठ सकते हैं. सो अदर डिपार्टमेंट के लिए ये क्या रहेगा? प्राइवेट प्रॉपर्टी. द नेक्स्ट एग्जांपल इज नथिंग दैट योर मोबाइल फोन्स. इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ योर द मोबाइल फोन विच इज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ योर्स. आप देते हो किसी को मोबाइल चलाने के लिए, आप प्रोटेक्ट करते हो ना यूजिंग योर द क्या फिंगरप्रिंट्स रहता है, हाँ, देन पैटर्न, पासवर्ड प्रोटेक्शन, क्या क्या है उसमें? फेस डिटेक्शन, आईज डिटेक्शन, फिंगरप्रिंट, देन पैटर्न्स. ये किसके लिए? प्रोटेक्शन फॉर युअर द सिस्टीम. हा, तुमच्या लहान भावाने किंवा बहिणीने जर मोबाईल घेतला तर लगेच काढून घेते ना हातातून. सो दिस इज दॅट युअर द प्राइवेट प्रॉपर्टी. देन द लैपटॉप. लैपटॉप क्या है? लैपटॉप पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है. ओके, उसमें अगर आपने 2 अकाउंट्स क्रिएट किए, एक आपके भाई के लिए और एक आपके लिए, देन अगेन इट इज with your the authentication. The next thing is that public property, that is suppose the pen. The pen can be used by anyone. Understand? So when we apply these access modifier on the classes or the methods or the variables, that means the other classes can't access the properties of the another class. Okay, so we are providing the restriction on the classes. So this access modifier helps to implement the encapsulation and the security in the Java. Okay, अगर हमने restrictions apply किया मतलब क्या? Secure हो गया. Secure means no one can access the data. Understand? This is the meaning of access modifier. Then what are the types of the access modifiers in the actually there are the 4 types of access modifier in the Java. First is a private. Second is default. Default means if you are not any access specifier in my code, that means the JVM understand that it is a default access modifier. Okay, हम लिखते हैं क्या अभी फिलहाल? int a equals to 10.
So we are not mentioning any access modifier. उसके सामने आप लगाते हो क्या public int a? No. Private int a equals to 10. ऐसे हमने अभी तक नहीं use किया. Okay, that means the JVM take as it is a default access specifier. And the third is nothing that the protected, and the last is public. Okay. So in C++, in object-oriented programming, there is another access modifier which is called as the friendly. To know that, I don't know where you guys heard about it or not. So first we will see what is the meaning of private access modifier. So this private access modifier is accessible only inside the same class. Okay, means suppose there is a class A. Within that, I am initializing one variable. Private int a is equals to 10. Okay, and within the same class, suppose I am defining one function display, and within this display function, I am displaying the value of that a. So is it executable within the same class? Yes. अगर मैंने वहीं पे main method declare किया, so in I call that the display function, तो वो क्या हो गया, within the same class के लिए private property आपकी execute हो जाएगी. बट आउटसाइड द क्लास, मतलब क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास बी में आपने क्या किया, मेन मेथड लिख दिया, और वहां से ये क्लास ए को अगर आप एक्सेस कर रहे हो, तो प्रॉपर्टी इज नथिंग दैट ए इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, सो वी कांट एक्सेस इट. Okay, why? Because the variable is a private. So within the same class, you can access it, but outside the class, the private property is not accessed. So here, private access modifier is accessible only inside the same class. Same class है ना. जब आप मेन मेथड लिखते हो, कभी कभार देखो हम क्लास ए लिखते हैं, क्लास क्लोज कर देते हैं, उसके बाद क्लास बी और उसमें हम मेन मेथड लिखते हैं, एंड वी आर सेविंग दैट फाइल यूजिंग द b.jar. तो ये अलग अलग क्लास हो गए, क्लास ए अलग है, क्लास बी अलग है. क्लास बी में आपने मेन मेथड लिखी है, तो क्लास ए में जो जितने भी वेरिएबल्स है, अगर आपने उसको प्राइवेट बना दिया, तो दैट इज ओनली एक्सेसिबल विद इन द क्लास ए. Class B is not going to access the class A members. Understand? If the members of the class A is a private, then we can't access from the class B. The next is, it is used for the data hiding. The data hiding is nothing that one of the feature of the object oriented programming, which is called as the data abstraction and data encapsulation. The next cannot be accessed outside the class. Okay, see one of the example is there. If you see this class student, private integer marks is equals to what? It is a 90. So this is the data member, which access modifier is nothing that what? It is a private. Okay, ये क्या हो गया? Private है. The next, void display function में हमने क्या लिखा है? system.out.println, we are going to print the value of marks. तो ये class यहाँ पे खत्म हो गया. We close this class. Then again we write the another class, that is the public class test. So see here, this test class is nothing that the public. Why it is a public? Because within this class I want to access the others data. So here the main method is written into the test class. Object of the student, student S is equals to new student, and after that, by using the object of the student class, we are calling this display function. So is it execute? होगा execute. डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेगा, डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा. डिस्प्ले फंक्शन के अंदर आपने क्या किया है? वी आर प्रिंटिंग द मार्क्स वैल्यू, लेकिन यहाँ पे एरर आएगा. डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा. डिस्प्ले इज नॉट यूर द प्राइवेट फंक्शन. ये है क्या प्राइवेट? यहाँ पे कुछ लिखा है क्या void के सामने? तो JVM यहाँ पे क्या करेगा? इट इज कंसिडर एज अ डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर. ओके, ये कॉल होगा थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट क्लास. जब कॉल होगा, देन द कर्सर इज गोइंग टू दिस system.out.println, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ द मार्क्स, लेकिन मार्क्स क्या है? प्राइवेट है, तो यहाँ पे एरर आएगा. सो इट गिव्स द एरर इज दैट प्राइवेट डेटा मेंबर इज नॉट एक्सेस आउटसाइड. कहाँ पे खत्म हो गया स्टूडेंट का? यहाँ तक की है ना, यहाँ तक इसका
स्कोप है। ये क्लास क्लोज हो गया, देन अगेन वी आर क्रिएटिंग द अनदर क्लास। हमने दो अलग अलग क्लास लिखे हुए। इफ यू आर राइटिंग द मेन मेथड विद इन दिस क्लास देन इट विल बी टेक्स्ट। समझ में आ रहा है? I will give you a demo so you can understand it. Here, class student one, because I have already a student class. Then private int marks is equal to, suppose it's 90. The next void display, and here I am printing this value. Okay, I close this class. Then again, the another class is class student test. And here, don't talk. So here we are creating the object of the previous class, that is student 1s equals to new student. Then by using s dot display, by using the object, we are calling this function, and we close this class. अभी बताओ मुझे, सेव करनी है फाइल, सो कौन से नाम से सेव करनी पड़ेगी? स्टूडेंट टेस्ट। किसे करना पड़ेगा? स्टूडेंट टेस्ट, नॉट वन। मेन मेथड कहाँ पे? स्टूडेंट टेस्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे रन करेंगे। हाँ, कंपाइल हो गया, कंपाइल हो गया प्रोग्राम। पहले क्या किया था मैंने, उसी फंक्शन में उसको कॉल कर रही थी, तो वहां पे हो गया, वहां पे एक्सेस हो गया। लेकिन डिस्प्ले फंक्शन क्या है? डिफॉल्ट है, वो प्राइवेट नहीं है ना, इसलिए वो आउटपुट दे रहा था। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे चेंजेस कर दिया। आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, इस क्लास से मैं इसको एक्सेस कर रही हूँ। समझते हैं? Here I will remove this. You guys are confused otherwise. ठीक है, ये समझ में आ गया। प्राइवेट एक वेरिएबल है, उसको मैंने प्राइवेट कर दिया। ओके,
So the scope of this variable is only for this class. Okay. Then the another class student test. And within this, I am creating the object of this class. And the next, by using this object, I am going to use this variable. So it gives me the error. Which type of error it shows? That is, marks has private access in the student. अभी इसको पब्लिक कर दो. क्या आता है? आएगा क्या? पब्लिक मतलब कोई भी यूज कर सकता है, सबके लिए फ्री. आ गया ना. नेक्स्ट, अभी कुछ नहीं देती मैं यहाँ पे. Nothing is that. JVM understand it is a default. हो गया? So why we write the public to the main method? यहाँ पे पब्लिक क्यों लिखा है? सिंटेक्स में है ना, मेन मेथड का सिंटेक्स क्या है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. पब्लिक क्यों है? ये पब्लिक किसके लिए है? ये हम क्यों लिखते हैं पब्लिक? एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है प्रोग्राम का? और उसको अगर आपने प्राइवेट कर दिया तो होगा क्या? नहीं ना. सपोज अगर मैंने यहाँ पे दो अलग अलग क्लास लिखे हुए, अभी ये तो एक ही स्क्रीन पे है. सपोज ये एक क्लास है, इसको मैं सेव करूंगी student1.java. तो ये कंपाइल होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज देर इज अ नो मेन मेथड. ठीक है, तो कंपाइल कर सकते हैं. द अनदर, आपके एक ही फोल्डर में दूसरा क्लास है जहां पे सिर्फ मेन मेथड है. ओनली मेन मेथड मतलब इतना ही है. या इस क्लास के अंदर कोई भी डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस कुछ नहीं है, कंस्ट्रक्टर नहीं है, इनहेरिटेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है. ओनली मेन मेथड जहां पे क्या होता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है. ठीक है, और बाकी के आपके सभी क्लासेस डिस्ट्रैक्टेड है हर जगह पे, मतलब किसी और फोल्डर में, किसी और फोल्डर में. तो ये मेथड में से मुझे वो क्लास के प्रॉपर्टीज एक्सेस करना है. तो यहाँ पे सिर्फ मेन मेथड है. ऑब्जेक्ट बनाओ कोई भी क्लास का और उसको कॉल कर दो. यस, समझ में आ गया अभी व्हाट इज पब्लिक एंड व्हाट इज प्राइवेट? प्राइवेट मतलब यहीं पे, अभी सपोज हम क्या करते हैं, इसको ये हटा देते. अभी रन होगा क्या? अभी रन होगा? यस और नो? या एरर आएगा? एरर आएगा? कहाँ पे आएगा एरर? हाँ, एरर कहाँ पे आएगा? यहाँ पे. ये क्लास ही नहीं है ना, तो किसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? अभी रन होगा? फिर रन आएगा और रन होगा क्या? हो गया. पहले क्या किया था हमने? स्टूडेंट का एक क्लास लिखा था, उसके अंदर एक डेटा मेंबर्स लिया था और उसको प्राइवेट कर दिया. अनदर क्लास ओपन किया, उसमें मेन मेथड लिखी, और मेन मेथड से हम उस प्रीवियस वाले क्लास के मेंबर को एक्सेस कर रहे थे, विच इज नथिंग दैट प्राइवेट. ओके, अभी यहाँ पे क्या है देखो, दिस इंटीजर, दिस मार्क्स इज एक्सेसिबल थ्रू आउट दिस क्लास ओनली. इसके बाहर एक्सेस नहीं होगा, ये करली ब्रैकेट के बाहर एक्सेस नहीं होगा. विदिन दिस क्लास दिस मार्क्स इज एक्सेसिबल. गॉट इट? अभी इसको पब्लिक बनाओ, इसको प्राइवेट करके देखो, प्रोटेक्ट करके देखो, डिफॉल्ट बनाओ. ये समजलं? सर्वांना समजलं का हे? नेक्स्ट. So this is the private. The next is default access modifier. No modifier is written in your the program, then the JVM understand that it is a default access modifier, and this default access modifier is accessible only within the same package.
अभी पैकेज मतलब ऐसा कंसिडर करो कि आपके पास एक फोल्डर है, ओके, जैसे मेरे पास हैंड्स ऑन नाम का एक फोल्डर है, उसी हैंड्स ऑन में सभी मेरे क्लासेस है, ओके, और दैट फोल्डर इज लोकेटेड ऑन टू द डी ड्राइव, उसका लोकेशन भी सेम है। सपोज आई एम क्रिएटिंग द अनदर फोल्डर ऑन द सेम ड्राइव, एक है हैंड्स ऑन और दूसरा है सपोज प्रोग्रामिंग, तो अलग अलग है, तो दैट बोथ फोल्डर एक्ट्स एज अ पैकेज। पैकेज में क्या है, प्रीवियस इसमें मेरे सभी क्लासेस है जावा के, डॉट क्लास फाइल भी है और डॉट जावा फाइल भी है। आई एम क्रिएटिंग द अनदर फोल्डर दैट इज द प्रोग्राम, एंड आफ्टर ऑनवर्ड्स आई एम सेविंग ऑल द प्रोग्राम्स इनटू द प्रोग्राम फोल्डर। तो ये दो आपके डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस हो गए। Some classes are present into the hands-on folder and some classes, Java codes, are present into the program folder. So this is called as what? It is a package. Package is nothing but the collection of all the classes. Got it? Package means what? It is a collection of all the classes. So you can create our own package in the Java. Okay? जैसे देखो scanner class है. Scanner class is present into the util package. So before using that the scanner class, we have to import it. तो import क्या करते हैं हम, क्या लिखते हैं first statement for using the scanner class? Import java.util.scanner. So ये जो scanner है, scanner is nothing that one a class into util package. So util is nothing that the collection of all the classes. उसमें का एक है scanner class, और scanner में बहुत सारे मेथड्स इंप्लीमेंटेड है, जैसे कि हम नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट क्या लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन एंड नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, ये सभी मेथड्स है। टू रीड दैट वैल्यू फ्रॉम यूर द कमांड प्रॉम्प्ट से हम रीड करते हैं, एंड वी आर असाइनिंग दैट वैल्यू टू यूर द ऑब्जेक्ट और यूर द वेरिएबल यूजिंग द स्कैनर ऑब्जेक्ट। गॉट इट? So here default access modifier means this default access modifier is accessible within the same package. Package is nothing that what? It is a collection of classes. Okay? एक ही फोल्डर में सभी क्लासेस है, वो तो क्या हो गया, वो आपका पैकेज हो गया। वो फोल्डर इज नथिंग दैट यूर द पैकेज। अगर दो अलग अलग फोल्डर्स बना दिए आपने, फोल्डर 1, फोल्डर 2 में जितने क्लासेस है वो एक्सेस नहीं करेंगे फोल्डर 1 के क्लासेस, बिकॉज आपका पैकेज डिफरेंट हो गया। डिफॉल्ट मतलब सेम फोल्डर में होना चाहिए, सेम पैकेज में क्लासेस होनी चाहिए, तब आप उसको यूज कर सकते। बट इट समझते हैं? नेक्स्ट, प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेसिबल इन सेम पैकेज, एक ही फोल्डर में है, accessible in a subclass. अभी subclass means what? Inheritance. Parent class, child class. So the child class is what? It is a subclass of parent class. तो protected अगर वैल्यू आपने बना ही parent class में, protected int a is equals to 10, और उसको आपने inherit किया है another class में, तो जो आपका second class रहेगा वो क्या है? subclass. किसका? Parent class का. So that value is accessible in the subclass. So protected data members are accessible in a subclass, not accessible by unrelated classes outside the package. Okay? मतलब दूसरा पैकेज उसको एक्सेस नहीं करेगा, सेम पैकेज में एक्सेस होगा एंड सब क्लास में एक्सेस होगा। See this example. Suppose there is a class animal. This function sound is nothing that the protected. Okay. The next, another class dog extends animal. So this is the subclass. So this void sound is protected, and this dog class can access this class. Why? Because it is accessible in the sound class. Sorry, dog class. मतलब हम इसको यूज कर सकते हैं, why? Because it is protected and it is accessible within the subclass of this class. Why it is a subclass? Because this class is inherited from the previous class. So this is the child class of this parent. Next, public access modifier, accessible from anywhere. Used for globally available classes or the methods. Global variable पता है ना?
Global variables are accessible outside the class or throughout the program also. But the local variables are only used within that the function. Yes. See here. This is one of the comparison table. First, name of the modifier, same class, same package, subclass, and the other classes. So the private is accessible only within the same class. And same package में नहीं होता है वो. Same package मतलब एक फोल्डर है, फोल्डर 1, उसमें आपने दो क्लासेस बनाए, A एंड B. A में आपने एक वेरिएबल को प्राइवेट किया, तो B क्लास उसको एक्सेस करेगा क्या? नहीं, एक का ही क्लास उसको एक्सेस करेगा. पैकेज का नाम एक ही है आपका, एक फोल्डर 1, उसमें दो क्लासेस है, ठीक है, A एंड B. लेकिन A में आपने प्राइवेट कर दिया डेटा मेंबर्स, तो B क्लास उसको एक्सेस नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता. व्हाई? बिकॉज दैट इज अ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर. सब क्लास, देखो अभी अगर आपने सिंगल इनहेरिटेंस का भी प्रोग्राम किया, ठीक है, अगर आपके इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी आपने दी है, तो वो भी आपकी इनहेरिट नहीं होती है, बिकॉज क्लास का स्कोप वहीं पे खत्म होता है. सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम देखना पड़ेगा. हमने लिया था ना सिंगल इनहेरिटेंस प्रोग्राम, क्या नाम दिया था मैंने? मल्टी इनहेरिटेंस. कौन सा प्रोग्राम लिया था, याद आ रहा है क्या? स्टूडेंट का था क्या? स्टूडेंट इनको मैनेजर. क्लास फाइल लेना, लेकिन लिखा था किसी ने? कौन सा लिया था हमने? था सिंगल इनहेरिटेंस के लिए. ठीक है, जाने दो, मैं करके दिखाती हूँ. हाँ, सैलरी एक्सचेंज. ईएमपी कहाँ पे? ईएमपी ठीक है. सीयर, हमें क्या करना है अभी? इनहेरिटेंस में प्राइवेट पब्लिक करके देखना है. सो फर्स्ट क्लास ए, अभी यहाँ पे लिखती हूँ मैं इंट a इक्वल्स टू 40. ठीक है, देन आई क्लोज दिस क्लास.
then class B extends A, और इसके बाद इसके पास खुद की प्रॉपर्टी रहेगी इंट B इक्वल्स टू 90. ओके, इसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है अभी? एक्सेस मॉडिफायर ऑफ ऑल दिस इंट A B क्या है? डिफॉल्ट हमने लिखा है क्या? नहीं, तो क्या करेगा जब ये इट इज डिक्लेयर एज व्हाट? इट इज डिफॉल्ट. अभी नेक्स्ट, सपोज इसमें ही मैं क्या करती हूँ, अभी मेन मेथड लिखती हूँ. Then object of this B class, B1 is equals to new B. Okay, then system dot out dot println B1 dot A. होगा ये एग्जीक्यूट? This is the single inheritance. होगा? Yes or no? होईल कारण सांगा काहीतरी, हो नाही? झाला? डिफॉल्ट आहे, डिफॉल्ट आहे म्हणजे कुठे प्रेझेंट आला तो? सी दिस टेबल, डिफॉल्ट सेम क्लास, देन सेम पैकेज. फोल्डर क्या है मेरा? एक ही है, हैंड्स ऑन, उसमें मैं सेव कर रही हूँ, तो पैकेज मेरा एक ही है. देन सब क्लास, सब क्लास में क्या हो रहा है? नो, एंड अदर क्लासेस नो. तो यहाँ पे अभी इसको हम करेंगे प्राइवेट. अब होगा, होगा कि नहीं? नहीं. हो गया? नहीं ना, प्राइवेट है, इनहेरिट हो गई वो. यहाँ पे इनहेरिट हो रहा है ये A40, होता है कि नहीं इनहेरिट? नहीं होगा, क्यों? तो ये उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, इनहेरिट नहीं करके देगा वो. यहाँ पे आप डिफॉल्ट करो, डिफॉल्ट हो जाएगा इनहेरिट. देन पब्लिक करो इसको. प्रोटेक्टेड करो, अभी प्रोटेक्टेड करके देखो. प्रोटेक्टेड क्या हो गया? प्रोटेक्टेड मेंबर्स इन द पेरेंट क्लास आर पब्लिक फॉर द चाइल्ड क्लास. समजते? प्रायव्हेट नाही झालं इथे, प्रायव्हेट नाही. सी दिस टेबल. So here protected same class yes, same package yes, सब क्लास में होता है, other classes में नहीं होगा. Public is accessible throughout the class, outside the class, same package, different package, सब classes. तो ये टेबल आपको पता होना चाहिए. समझ लो? So in the next lecture we will start package and abstract classes.